رخ کریں گے ملتان کا۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اٹھا سکیں جب تک آپ کو بولنے کا حق نہ ہو، جب تک آپ کے اظہار رائے کے اوپر پابندی کی کوئی بھی صورت موجود ہے تو اس میں وہ جمہوریت کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بٹ اپروپریٹ تھنگ از کہ آپ پہلے آرٹیکل 19 کو دیکھ لیں کہ آرٹیکل 19 جو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 19 کلیئرلی سیز، اس کا پہلا پرووائزو تو آپ کو حق دے رہا ہے، اور ساتھ ہی 19A آپ کو سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا۔ اب لا کیا ہے؟ یعنی پی پی سی پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا مواد جو کہ انڈیسنٹ ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ آبسین ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ سیکیورٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کے فورن ریلیشن کے خلاف ہوگا، فورن ریلیشنز کے خلاف ہوگا، تو اس میں اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کی بات ہو کرتے ہیں، اور ریزنیبل ریسٹرکشن انڈر لا ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے۔ تو یہ جو کل صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران ریاض، ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو کہ پی پی سی کی دفعہ 121A کے تحت ہے، اور ان کے خلاف لگ بھگ 20 کے خلاف ڈیفرنٹ کاؤنٹس پہ مقدمات ہیں، جس میں انہوں نے آبجیکشنیبل مٹیریل۔ اب آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ اپنی بات بے لاگ کہیں۔ بے لاگ بات کون سی کہیں؟ جن کی آرٹیکل 19A ریسٹرکشنز پرووائڈ نہیں کرتی۔ اگر آپ کے کنٹینٹ سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تنقید سے بیونڈ جا کے آپ کے ذاتی ایجنڈے کو سرو کرتے ہوئے پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، یا وہ پاکستان کے فورن ریلیشنز کو فرینڈلی سٹیٹس کے ساتھ کسی طرح سے متاثر کر رہی ہے، یا وہ انڈیسنسی کے زمرے میں آتی ہے، یا وہ پاکستان کی سالمیت کے اور سیکیورٹی کے خلاف بات آ رہی ہے، تو ان حالات میں آپ ایک قابل گرفت جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے، اس میں انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا، اور اس ویڈیو کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویڈیو کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اس میں کوئی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پولیٹیکل نیچر ہو، اس کی پوری ان کے کنٹینٹ کی اگر آپ اس کو پوری طرح سے اس ایف آئی آر کو پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ریپروڈیوس ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات پر، اور جو انہوں نے کہا وہ انتہائی آبجیکشنیبل، قابل اعتراض، اور وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے کہ جس پہ آرٹیکل 121 اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 121A پی پی سی کا سیکشن 121A اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 19A فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر پرووائڈڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، مقدمہ درج تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کل رات سے یہ شور مچایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہم نے اپنا موقف کل رات کو ہی دیا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیے گئے، ان کو اٹک سے، جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ جورسڈکشن ہے، ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے، کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں، ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔
वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इस सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब अगर इसको ये रंग देकर कुछ लोग अपना सियासी तल्लुक दिखाना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वी ऑल नो, हमें पता है कि उनकी एक जो पोजीशन होती है, एक जर्नलिस्टिक पोजीशन होती है। मैं इस पर कोई कैद नहीं लगा सकता कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके उस पूरी बात से बायस रिफ्लेक्ट करता हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हो, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हो, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं। ये दो अलग-अलग बातें। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट करते तो आपकी वो जो पोजीशन थी, जब आपने पहले कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए कि उनके ऊपर को ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के तहत उस वक्त के गवर्नमेंट के तहत पर्चे दर्ज हुए, तो आपने जस्टिफाई किया और एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे जस्टिफाई किया कि ये जस्टिफाइड एक्ट्स हैं, ये क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी की है, ये क्योंकि पीपीसी की सेक्शन 121 के ज़िमरे के अंदर आती हैं, और ये जो है मामलात सेडिशन के और गद्दारी के आपने फतवे दिए उन जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए कल से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपकी उस पोजीशन को और इस पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं, और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की। जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवाम उन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे। ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। हमें पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो ममालिक हैं जिनकी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जा बेजा इल्ज़ामात लगाने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात लगाने। मैं तो हैरान हूँ कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। मैं इमरान खान साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। आपकी यास्मीन राशा ने एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक कहा कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज लेकर आएं। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, और इस बुनियाद पे आप इल्जामात लगा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपको इलेक्शन के अंदर एक वाज़ेह शिकस्त है। आपको इस बात का पता है कि अवाम के अंदर आपकी कोई पजीराई नहीं है। आपको इस बात का भी इल्म है कि आप पिछले 4 साल के अंदर जो मिस गवर्नेंस, नॉन डिलीवरेंस, बेरोजगारी, महंगाई, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। आपने सियासी इंतकाम पर मबनी अपनी हुकूमत को कायम रखा, और आपने अपने मुखालिफिन के खिलाफ पे दर पे ऐसे मुकदमात कायम किए। तो आज मैं हैरान होता हूँ उन्हीं चेहरों से ये इंसानी हकूक की बातें सुनते। हम तो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, हम तो कहते हैं कि वी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट ये जो केस आज अगर इमरान रियाज का है, और अगर ये लॉ के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है, अगर ये आइन के तहत आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो फिर उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे पोजीशन के साथ जहां पर लोगों के साथ ज्यादती होती रही। आपने तो प्रोसिक्यूशन के नाम पे परसिक्यूशंस की। हमने उस वक्त आके आपके सामने सिर्फ ये कहा कि आप नाजायज मुकदमात कायम कर रहे हैं, आप हुकूमत के अंदर वो रविश इख्तियार कर रहे हैं, बिला जवाज, बिला सबूत, बेबुनियाद मुकदमात कायम करके आप बिल्कुल ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा रहे हैं। बट ये तो एक हार्ड फैक्ट है, ये तो वो केसेस हैं जिनकी एविडेंस है, इट इज अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया। एक शख्स जो कि पाकिस्तान के रियासती अदारों को हदफे तनकीद बनाता रहे, और अपनी फहमो फरासत के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, उनको नहीं पता कि वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्या इजाज़त दे दी जाए
क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर पे तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की, उनको ये हक दे दिया जाए कि वो जब चाहे एक्सक्यूज मी पार्डन, जब चाहे जैसे चाहे जिस तरह का मर्जी लाकर लोगों के ऊपर वो इल्जामात लगाने शुरू कर दे और वो उनके ऊपर कोई चेक ना हो। ये आज़ादी इजहार नहीं है, बिल्कुल ये आज़ादी इजहार नहीं है। आज़ादी इजहार का मतलब कतई तौर पे मैं खुद आई एम एन एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सूरत में, तनकीद का हक हर सूरत में, अपनी बात कहने का हक हर सूरत में पाकिस्तान के शहरियों को होना चाहिए। लेकिन जब आप वो लाइन क्रॉस कर दें, और वो लाइन कौन सी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते किसी ऐसी पोजीशन से कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ या मेरे पास कोई एक ऐसा ओहदा है या मेरे पास कोई एक ऐसी पोजीशन है, चाहे मैं किसी जुडिशरी के बेंच पे बैठा हूँ, आपको हक हासिल है। अगर आप मेरी ज़ात पे तनकीद करते हैं या आप मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो उसकी बुनियाद ये कॉन्स्पायरिंग एंड मेलाइनिंग ऑफेंस है, लॉ कहता है कि ये ऑफेंस है, तो आपको कैसे छूट दे दी जाए कि आप गैर कानूनी इकदाम करें और आपको इजाज़त मिली रहे। अब जब ये मुझे थोड़ी तशवीश थी, मैंने आपसे कहा, फ्रैंकली मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ी तशवीश थी, तो मैंने जब पूरा रिकॉर्ड इनका चेक किया तो मुझे कुछ अजीबो गरीब हकाइक मेरे सामने खुले। अब अगर मैं जवाबदेह हूँ, मैं अपने मामलात का जवाबदेह हूँ, आप अपने मामलात के जवाबदेह हैं, हम जितने लोग हैं हम सब अपने मामलात के जवाबदेह हैं, तो फिर यहाँ पे सेक्रेड काउज नहीं हो सकती। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके पास लाइसेंस है टू किल एनीवन, दैट इज नॉट द केस सर। आप ये नहीं कर सकते। आप खुद भी देखें, फिर आपको अपने क्रेडेंशियल्स बयान करने पड़ेंगे। आपके अपने क्रेडेंशियल्स में बहुत सारे जवाबात हैं जो देने पड़ेंगे। आपको बताने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स फिशरीज डिपार्टमेंट्स के कैसे लिए गए, करोड़ों रुपए उनके अंदर कैसे दिए गए, बुजदार सरकार के साथ आपके क्या मामला थे। यू हैव टू टेल दैट सर। आपको बताना होगा कि वो करोड़ों रुपए किन अकाउंट्स में से आए और किन अकाउंट्स के पास गए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ये केस है, अगर वो सवाल हमसे हो सकता है, वो जवाब हमें एफआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के बेबुनियाद केसेस थे, ये तो बड़े क्लियर एविडेंस के साथ केसेस है। तो फिर ये साहब भी बताएं आके कि यकदम इनकी जो माली सूरत हाल थी वो कैसे इतनी बुलंद हुई कि वो एक बड़े साहिबे जायदाद भी बन गए और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की उनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सामने आ गई। और वो उनकी तफसीलात जो हैं होशरबा तफसीलात हैं, वो इस तरह की तफसीलात नहीं है। यानी उनके पास एक लाहौर की एक बड़ी पॉश एरिया के अंदर घर है, सोर्स अननोन है, छोटा मोटा घर नहीं है, इट्स अ ह्यूज विला, बंगलो है। वो कोई 4, 6, 8 कनाल पर मुहित होगा गालिबन, जो तफसीलात मेरे पास आई है। इर्रेगुलर है, उसका सोर्स आज तक क्लियर नहीं है। हु नोज वेयर इट हैज कम फ्रॉम, किसके पैसे के साथ वो बना, कोई उसकी डिक्लेयर्ड इनकम की कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को बयान कर सके। उनके टैक्स रिकॉर्ड्स ये जाहिर नहीं करते कि उनकी क्या पोजीशन है कि वो कैसे ये कर सके। सो मीनिंग बाय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती या इस बात पर कि उनका कोई हमारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है तो हम बर्दाश्त करते हैं। नजरियाती इख्तलाफ को बर्दाश्त करना जमहूरियत का हुस्न है, वो मुझसे करें। लेकिन मिलाइन करके आर्टिकल 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी करनी और आर्टिकल 121A के खिलाफ जाना, ये दो बड़ी अजीब बातें। फिर मैंने उनकी वो पोस्ट देखी जो वो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी चीज़ों पर। उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अब पाला हमसे पड़ा है, हम बताएंगे, हमसे पाला पड़ा है। हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, उसके बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हैं कि ये जिस दिन तारीख धरना था, जिस तारीख को इमरान खान का धरना था, ये साहब उस दिन वाक़तन एक किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस थे। ये अपने धरने में बैठ के ये कहते पाए गए, ये सुना गया कि ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर से को फोने शोने आ रही हैं। ये उसके प्रोपोगेशनिस्ट थे। एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ इनकी ये सारी पूरी बातचीत हो रही थी, एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ। और ये ही वॉज क्लियरली सेइंग कि जी देखे
हमें बाहर से इतलाएं आ रही हैं, हमें बाहर से कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें किसी पे एतबार नहीं है, हमें बाहर वाले कह रहे हैं कि आप धरना उठा ले, ये हुकूमत जो है टूट जाएगी, इसको जल्दी इसके के साथ जो इत्तेहादी हैं वो उतार लिए जाएंगे। तो अगर तो कोई बैरूनी साजिश है, आपको ये बताई जा रही है बतौर आपके, बकौल आपके, इमरान खान आपको ये कह रहे हैं, इमरान खान पीटीआई वाले, इस इमरान रियाज खान को पीटीआई वाले को वो इजला बनते हैं और जिनके चंद हल्के बनते हैं, यानी टोटल 11 इजला या 12 इजला के अंदर इलेक्शन है और ये चाहते हैं कि बाकी 25-26 इजला को हम बिल्कुल बंद कर दें। जो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप इन लोगों के लिए, इनकी जो इन लोगों को रिलीफ देने के लिए मेरे ऊपर एक इंटरेस्टमेंट है, उसको मैं परफॉर्म ना करूं और इनकी इस लगव बात को मैं सुनूं। आज गरीब आदमी का चूल्हा चलाने के लिए मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है। आप सबको पता है इस ग्राउंड रियलिटी का कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त इन मुश्किल हालात से ना निकाला जाता, पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था। यस, आई कैन से दैट पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था। किन वजूहात पर पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था? कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं हो पा रहे थे पिछले 4 साल की गवर्नेंस की बुनियाद पे। कैसे? आप तेल बाहर से महंगा लेते, बाहर से महंगा तेल खरीद के पूरी दुनिया में महंगा है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए था, आप आके अपने लोगों को बताते कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस हैं। अगर मैं अपनी जेब के ऊपर यानी रियासत पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर ये बोझ लाद रहा हूँ, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि 2 माह के अंदर ये रियासत डिफ़ॉल्ट करने के नज़दीक चली जाएगी। यानी 150 बिलियन का सब्सिडी का बिल हर महीने आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जा रहे थे। और किन हालात में करते जा रहे थे? जब आपकी अपनी कोई ऐसी बात नहीं थी, आप पैसे भी IMF से ले रहे थे। IMF से पैसे लेके एक अनकैलकुलेटेड, एक ऐसी चीज़ जिसका आपने पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर हिसाब भी नहीं रखा हुआ था, वो एक अनऑथोराइज्ड सब्सिडी आप दे रहे थे। और वो सब्सिडी सिर्फ आप इसलिए दे रहे थे कि आप अपनी सियासत बचाना चाह रहे थे, और सियासत को बचाते बचाते आप अपनी रियासत गंवाना चाह रहे थे। तो तब हमारे लिए फैसला मुश्किल नहीं था, ये तहरीक में एतमाद एक आईनी हक था, हमने इस्तेमाल किया। और ये सोच थी पार्टी के अंदर गालिबन बड़ी फेयरली, एक हमारी विद इन द पार्टी, विद इन द कोलिशन अलायंस ये बात थी कि हम फौरी तौर पे इंतखाबात में चले जाएं। तो फिर ये मुश्किल फैसले किन के लिए छोड़ दें? यानी हम भी अपनी सियासत बचाएं, हम तेल की कीमतों में इजाफा ना करें, IMF के साथ जो इनके किए गए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।